اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک کے مرتے ہی اس کے کئی غلام، سردار اور اس کا بیٹا آرام شاہ سلطان بننے کی ریس میں کود پڑتے ہیں۔ آرام شاہ کو کچھ اتہاسکار قطب الدین ایبک کا بیٹا نہیں مانتے، مگر کچھ اتہاسکار مانتے ہیں۔ غلام سلطنت میں دو جگہیں سب سے اہم تھی، ایک دلی تو دوسری لاہور۔ جب قطب الدین ایبک کی موت ہوتی ہے تبھی غلام سلطنت ٹوٹنے لگتی ہے اور حکمران اپنی آزادی کا اعلان کرنے لگ جاتے ہیں۔ لاہور کے سردار اس مصیبت کو دیکھ جلدی آرام شاہ کو سلطان بنا دیتے ہیں، مگر یہ فیصلہ دلی کے سرداروں کو پسند نہیں آتا، کیونکہ آرام شاہ اپنے نام کے مطابق آرام فروش یعنی سلطان بننے کے لائق نہیں تھا۔ اسی لیے دلی کے سرداروں نے قطب الدین ایبک کے غلام التتمش کو دلی بلایا اور سلطان بنا دیا۔ اب یہ اور بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، سلطنت ایک اور سلطان دو۔ اب ایک میان میں دو تلواریں تو نہیں رہ سکتی، اسی لیے آرام شاہ اور التتمش کے بیچ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں التتمش جیتتا ہے اور آرام شاہ مارا جاتا ہے۔ اب غلام سلطنت التتمش کے ہاتھوں میں تھی، مگر جتنی مصیبتیں، جتنی بغاوتیں التتمش کے حصے میں آئی تھی اتنی بھارت کے کسی سلطان کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ ایک طرف تاج الدین یلدز اور نصیر الدین قباچہ التتمش کی سلطنت کو ہتھیانے کی تیاری میں تھے، تو دوسری طرف جلال الدین منگبرنی کے حملے کا ڈر تھا۔ ادھر منگول بھارت پر حملے کی تیاریوں میں جٹے تھے تو بنگال بہار کی بغاوت التتمش کی پریشانیاں بڑھا رہی تھی اور بھارت کے ہندو راجاؤں کے حملے تو الگ سے ہو رہے تھے۔ کیسے شمس الدین التتمش ان ساری سمسیاؤں سے اکیلا ہی نپٹتا ہے؟ شمس الدین التتمش کا جنم کب اور کہاں ہوا تھا اس کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ التتمش ایک اچھے خاصے پریوار میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتا علم خان الباری ترک جنجاتی سے تھے۔ التتمش بڑا ہی خوبصورت اور ذہین لڑکا تھا، اسی خاصیت نے اسے غلاموں کی دنیا میں دھکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ التتمش کے بھائی اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے جلن رکھتے تھے، اسی لیے ایک دن اس کے بھائیوں نے اسے غلاموں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیا۔ اس کے بعد تو التتمش کئی آقاؤں کا غلام بنتا ہے، کبھی کہاں بکتا ہے تو کبھی کہاں خریدا جاتا ہے۔ آخر میں جلال الدین محمد نامی ویپاری، اس نام سے کنفیوز مت ہونا، جلال الدین محمد ایک ویپاری تھا جبکہ جلال الدین منگبرنی ایران کا بادشاہ تھا۔ تو جلال الدین محمد نامی ویپاری التتمش کو خرید کر غزنی لے آتا ہے۔ پورے غزنی شہر میں التتمش کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ جب یہ خبر محمد غوری کو ملتی ہے تو محمد غوری فوراً التتمش کو خریدنے آ جاتا ہے۔ محمد غوری جلال الدین محمد کو التتمش کے بدلے 1000 سونے کے سکوں کی پیشکش کرتا ہے، مگر جلال الدین محمد التتمش کو بیچنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اسی بات پر محمد غوری اتنا غصہ ہوتا ہے کہ اعلان کر دیتا ہے کہ اگر غزنی میں کسی نے بھی اس غلام کو خریدا تو وہ اپنی جان گنوا بیٹھے گا۔ جلال الدین محمد التتمش کو لے کر بخارا چلا جاتا ہے اور 3 سال بعد واپس لوٹ کر آتا ہے۔ اس وقت قطب الدین ایبک کی نظر التتمش پر پڑ جاتی ہے۔ اتنا خوبصورت اور ذہین غلام دیکھ کر اس سے رہا نہیں جاتا ہے اور قطب الدین ایبک فوراً محمد غوری سے غلام التتمش کو خریدنے کی پرمیشن مانگتا ہے۔ محمد غوری کہتا ہے کہ تم اسے غزنی میں تو خرید نہیں سکتے، ایسا کرو اسے دلی لے جاؤ اور وہیں خرید لو۔ قطب الدین ایبک التتمش کو دلی لے جا کر 1 لاکھ چاندی کے سکوں کے بدلے خرید لیتا ہے۔ قطب الدین ایبک التتمش کی ذہانت دیکھ کر پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلام آگے چل کر بہت بڑی سلطنت قائم کرنے والا ہے۔ قطب الدین ایبک کی پرورش میں التتمش ایک ذہین اور نڈر حکمراں بن کر ابھرتا ہے۔ قطب الدین ایبک اسے بدایوں کا صوبے دار بنا دیتا ہے۔ صوبے دار مطلب مکھیہ منتری۔ بدایوں اس وقت دلی سلطنت کا سب سے خاص علاقہ مانا جاتا تھا۔ دوستو، التتمش کی بہادری کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ سن 1205-6 میں محمد غوری خوخر بغاوتیوں کے خلاف جنگ کرتا ہے، جس میں قطب الدین ایبک اور التتمش بھی اپنی سینا کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ اس جنگ میں التتمش اپنی بدایوں ٹکڑی کے ساتھ کھوکھر سینکوں پر اتنا زبردست حملہ کرتا ہے
जबकि इल्तुतमिश खोकर सैनिकों को काट काट कर झेलम नदी में फेंकता चला जाता है। इल्तुतमिश की इस बहादुरी को देख मोहम्मद गोरी इतना खुश होता है कि उसे शाही लिबास से सम्मानित करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक से कहता है कि इस गुलाम का खास ख्याल रखना। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच सुल्तान बनने की जंग होती है। इल्तुतमिश जीतता है और 1211 ईस्वी में ममलूक सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। सुल्तान बनते ही इल्तुतमिश अपनी बिखरी हुई सल्तनत को संभालने की कोशिश करता है। इतने में गजनी का सुल्तान ताजुद्दीन यिल्दिज इल्तुतमिश को पैगाम भेजता है कि तुम अब से हमारे अंडर में हुकूमत करोगे, वरना जंग के लिए तैयार रहना। इल्तुतमिश अभी नया नया सुल्तान बना था, पहले ही उसके सामने दुनिया भर की मुसीबतें थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने जंग रोकने के लिए और दिखावे के लिए ताजुद्दीन यिल्दिज की पेशकश मान ली। चलिए, मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उसकी सल्तनत उसके 3 गुलामों में बंट जाती है। गजनी का इलाका ताजुद्दीन यिल्दिज के हिस्से में आता है। मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत करता है और उत्तरी भारत पर कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी सल्तनत बना लेता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद उसकी सल्तनत इल्तुतमिश के हाथों में आ जाती है। सब अपनी अपनी सल्तनत संभालने में लगे होते हैं कि अचानक ईरान का बादशाह जलालुद्दीन मंगबरनी गजनी पर हमला कर देता है। ताजुद्दीन यिल्दिज जलालुद्दीन मंगबरनी का सामना नहीं कर पाता है और गजनी से भागकर लाहौर आ पहुंचता है। इस वक्त लाहौर और पंजाब पर नसीरुद्दीन कबाचा की हुकूमत होती है। दरअसल आराम शाह और इल्तुतमिश की जंग के बाद मौका पाकर नसीरुद्दीन कबाचा लाहौर और पंजाब के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी सेना के साथ गजनी से भागकर लाहौर पहुंचता है और नसीरुद्दीन कबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ इलाके छीन लेता है। ताजुद्दीन यिल्दिज अपनी पावर बढ़ाता हुआ भारत की तरफ दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ता है और हरियाणा के थानेश्वर तक आ पहुंचता है। इस मुसीबत को देख इल्तुतमिश सोचता है कि कहीं ताजुद्दीन यिल्दिज दिल्ली पर भी हमला न कर दे। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर हरियाणा के तराइन में पहुंचता है और ताजुद्दीन यिल्दिज के खिलाफ ऐसी जंग करता है कि यिल्दिज संभल नहीं पाता है। दोस्तों, ये वही तराइन का मैदान था जहां मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 के युद्ध में हराया था। इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज को पकड़कर बदायूं लाता है और मौत के घाट उतार देता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक ताकतवर दुश्मन को किनारे लगाने में कामयाब रहता है। तराइन की ये जंग 1215-16 ईस्वी में हुई थी। इस जंग के बाद इल्तुतमिश दिल्ली लौट आता है और पीछे से नसीरुद्दीन कबाचा मौका पाकर फिर से लाहौर और पंजाब पर कब्जा कर लेता है। लाहौर पर कब्जा करने के बाद कुबाचा की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि वो सोचने लगता है कि अब तो मैं दिल्ली सल्तनत को भी फतह कर सकता हूँ। और फिर कुबाचा पंजाब की तरफ से भारत में घुसने लगता है, मगर सामने इल्तुतमिश मिल जाता है। इल्तुतमिश कुबाचा को मार पीट कर वापस मुल्तान भगा देता है। इस जंग से कुबाचा इल्तुतमिश से इतना डर जाता है और उसको इतना नुकसान होता है कि वो इल्तुतमिश के साथ अमन मुआहिदा कर लेता है और चुपचाप बैठ जाता है। 1227 में जब इल्तुतमिश कबाचा को हराकर वापस मुल्तान भेज देता है तो उसके बाद माहौल शांत होने लगता है, हर तरफ अमन होता है कि अचानक एक बड़ी घटना घट जाती है। 1220 ईस्वी में मंगोल ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी पर अटैक कर देते हैं। ये हमला क्यों होता है? दरअसल चंगेज खान अपने कासिद के साथ जलालुद्दीन मंगबरनी को ये पैगाम भेजता है कि तुम हमारे अंडर में हुकूमत करो, नाम तुम्हारा चलेगा, बस असल हुकूमत हमारी होगी। ये बात जलालुद्दीन मंगबरनी को लग जाती है और वो चंगेज खान के कासिद की गर्दन काटकर वापस चंगेज खान को भेज देता है। ये काम करके जलालुद्दीन मंगबरनी ने मानो अपनी बर्बादी को दावत दे दी थी। चंगेज खान अपने खूंखार सेना लेकर जलालुद्दीन के साम्राज्य पर हमला कर देता है, पूरा शहर जला के राख कर देता है। जलालुद्दीन वहां से जान बचाकर भागता है और पंजाब, जहां पहले जलालुद्दीन मंगबरनी के डर से ताजुद्दीन यिल्दिज भाग कर आया था, अब उसी पंजाब इलाके में खुद जलालुद्दीन मंगबरनी भाग कर आता है। इस वक्त पंजाब के कुछ इलाकों पर खोखरों की हुकूमत थी। ये वही खोखर थे जिससे आखिरी वक्त में मोहम्मद गोरी ने जंग की थी और इन्हीं खोखरों में से किसी ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन मंगबरनी किसी तरह इन खोखरों से साठगांठ करने में कामयाब होता है और कुबाचा से लाहौर और पंजाब के कुछ और इलाके छीन लेता है। मंगोल जलालुद्दीन मंगबरनी को भूखे भेड़ियों की तरह तलाश कर रहे थे,
मंगबर्नी जानता था कि खोखरों की सेना से मंगोलों से नहीं निपटा जा सकता और न ही मुल्तान के राजा कुबाचा में इतनी हिम्मत है कि वो मंगोलों से जंग कर ले। बस मंगबर्नी की आंखें इल्तुतमिश की ओर घूमी और उसने इल्तुतमिश को पैगाम लिख भेजा कि मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर मंगोलों को हरा देंगे और मुझे दिल्ली सल्तनत में रहने के लिए कोई इलाका दे दो। इल्तुतमिश को मंगबर्नी का ये पैगाम मिला ही था कि अचानक उधर से चंगेज खान का भी पैगाम आ जाता है कि अगर तुमने मंगबर्नी की मदद की या उसे रहने के लिए जगह दी तो अंजाम भयानक होगा। इल्तुतमिश फंस जाता है, एक तरफ मंगोल तो दूसरी तरफ जलालुद्दीन मंगबर्नी। इल्तुतमिश अक्लमंद हुक्मरान था, उसे पता था कि अगर मंगोलों ने दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दिया तो वो यहाँ के शहर उजाड़ देगा, मासूम लोगों को जिंदा जला देगा। इस मुसीबत से बचने के लिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबर्नी को मदद करने से इनकार कर दिया और अपनी सूझबूझ से भारत को मंगोलों के हमले से बचा लिया। चंगेज खान को जब ये पता चलता है कि जलालुद्दीन मंगबर्नी मुल्तान और पंजाब के इलाकों में छुपा है तो चंगेज खान की सेना मुल्तान पर हमला कर देती है और लूट मार करके वापस चली जाती है। यहाँ बेचारे कुबाचा का बैठे बिठाए ही नुकसान हो जाता है और उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जब माहौल ठंडा होता है तो जलालुद्दीन मंगबर्नी 1228 ईस्वी में पंजाब में अपने सेनापति सैफुद्दीन को हुकूमत सौंपकर वापस ख्वारिज़्म में चला जाता है। इल्तुतमिश जब इन सब मुसीबतों को निपटा कर थोड़ी चैन की सांसें लेने की कोशिश करता है तो इतने में बंगाल में खिलजियों द्वारा बगावत खड़ी कर दी जाती है। दरअसल मोहम्मद घोरी के दौर में उसका एक सिपह सालार बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार को फतह करता है। बाद में जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक अली मर्दान नामी सिपह सालार को बंगाल का सूबेदार बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत होते ही अली मर्दान अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, मगर बख्तियार खिलजी के चाहने वाले सरदार अली मर्दान का कत्ल कर देते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि अली मर्दान ने ही बख्तियार खिलजी की हत्या करवाई थी। फिर वे सरदार अपने एक आदमी हिसामुद्दीन इवाज को बंगाल का राजा बना देते हैं। इस वक्त इल्तुतमिश ताजुद्दीन यिल्दिज कुबाचा खोखरों और मंगोलों से अकेले ही लड़ रहा था। बंगाल की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। हिसामुद्दीन इवाज धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के इलाकों को कब्जाने लगता है। हिसामुद्दीन इवाज को सबक सिखाने के लिए इल्तुतमिश सेना लेकर बंगाल की तरफ रवाना होता है, मगर हिसामुद्दीन इवाज बिना जंग के ही हार मान लेता है और सालाना खिराज पर इल्तुतमिश के अधीन होने का वादा करता है। मगर जैसे ही इल्तुतमिश वापस दिल्ली लौटता है तो हिसामुद्दीन इवाज अपना रंग बदल लेता है और वापस अलग रियासत का ऐलान कर देता है। इस बार 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल भेजता है। नासिरुद्दीन महमूद हिसामुद्दीन को हराकर बंगाल मुसीबत का किस्सा ही खत्म कर देता है। इस तरह नासिरुद्दीन महमूद बंगाल के बिगड़े हुए हालात को सुलझा लेता है। इल्तुतमिश इस जीत से खुश होकर अपने बेटे नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल व बिहार का सूबेदार बना देता है। दोस्तों, अब तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि भारत में हुकूमत करने पर भी इल्तुतमिश की हिंदू राजाओं से भिड़ंत क्यों नहीं हुई। दरअसल हिंदू राजाओं ने पहले तो इल्तुतमिश की हुकूमत को तस्लीम कर लिया था और चुपचाप अपनी हुकूमत चला रहे थे, मगर जब इल्तुतमिश अपने कई दुश्मनों से निपटने में व्यस्त था तब सन 1225 ईस्वी में कई हिंदू राजा एक साथ बगावत पर उतर आए, मगर इल्तुतमिश के सामने ये बगावतें सांस नहीं ले पाई। इल्तुतमिश ने एक एक कर सभी को अपने अंडर में ले लिया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उस रणथंभोर किले को भी फतह किया जिसे 50 राजा भी कभी फतह नहीं कर पाए थे। इसी बीच 1231 में ग्वालियर के राजा मंगल देव ने मौका पाकर अपने आप को दिल्ली सल्तनत से अलग करके आजाद होने का ऐलान कर दिया। इल्तुतमिश अपनी सेना लेकर ग्वालियर पहुंचता है और 11 महीनों तक ग्वालियर का घेराव करने के बाद मंगल देव को हरा देता है। मंगल देव ग्वालियर छोड़कर फरार हो जाता है और ग्वालियर दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। 1228 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगबर्नी वापस ख्वारिज़्म में चला जाता है और पंजाब व लाहौर पर अपने नायब शमसुद्दीन को हुकूमत सौंप जाता है। उधर मुल्तान व सिंध पर नसीरुद्दीन कबाचा हुकूमत कर रहा होता है। दोनों ही इल्तुतमिश की दिल्ली सल्तनत पर हमला करने की तैयारी में रहते हैं, मगर वो इल्तुतमिश पर हमला करते उससे पहले ही इल्तुतमिश उन पर धावा बोल देता है। इल्तुतमिश का बेटा नासिरुद्दीन महमूद पंजाब व लाहौर पर हमला करके
शमसुद्दीन को हटा देता है, जबकि इल्तुतमिश नासिरुद्दीन कबाचा पर हमला करके उसका किस्सा खत्म करता है। इस तरह इल्तुतमिश अपने एक और ताकतवर दुश्मन कबाचा से छुटकारा पा लेता है। दोस्तों, इस वक्त तक इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान नहीं बना था। उसकी आजाद हुकूमत जरूर थी, मगर वो इस्लामी दुनिया में सुल्तान नहीं माना जाता था। इसीलिए उस वक्त के अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिर बिल्लाह ने इल्तुतमिश को सुल्तान आजम के ओहदे से नवाजा और 1229 में जाकर इल्तुतमिश ऑफिशियल सुल्तान बना। (1229) में अचानक बीमारी की वजह से इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। अपने बेटे की याद में इल्तुतमिश एक मकबरा बनवाता है और इसी मकबरे के साथ ही भारत में सबसे पहला मकबरा बनवाने और मकबरा बनवाने के रिवाज की शुरुआत का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान तशरीफ लाते हैं तब वो अजमेर को अपना घर बना लेते हैं। सन 1235 ईस्वी में जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से चले जाते हैं तो इल्तुतमिश ही वो पहला सुल्तान होता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मजार या दरगाह बनवाता है। इसके ठीक 1 साल बाद ही इल्तुतमिश लंबी बीमारी के चलते इंतकाल कर जाता है। इल्तुतमिश की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत में उठापटक शुरू हो जाती है। इल्तुतमिश अपनी जगह अपने बड़े बेटे नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश की मौत के बाद उसके 4 बेटे बारी बारी सुल्तान बनते हैं, मगर महल के साजिशी सरदार सबको बारी बारी मौत के घाट उतारते जाते हैं। और फिर 1236 के आखिर में कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक औरत दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठती है। वो औरत थी रजिया सुल्तान। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मौत हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली सल्तनत एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ खड़ी होती है। दिल्ली सल्तनत पर एक औरत रजियातुद्दुनिया व उद्दीन, जिसे हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं, वो हुकूमत करती है। रजिया का जन्म सुल्तान इल्तुतमिश के घर 1205 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और रजिया की माँ तुर्कान खातून कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी। वैसे तो इल्तुतमिश के कई बेटे थे, मगर सब के सब नालायक और अय्याश थे। सुल्तान बनना तो दूर, उनमें सूबेदार बनने तक की सलाहियतें भी नहीं थी। इसीलिए इल्तुतमिश अपने सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को अपना जानशी बनाना चाहता था, मगर 1229 ईस्वी में ही नसीरुद्दीन महमूद की मौत हो गई। अब इल्तुतमिश पल पल इस सोच में परेशान रहता कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी सल्तनत को कौन संभालेगा। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी जबरदस्त तरीके से सिखा दी थी। यहाँ तक कि रजिया अपने पिता इल्तुतमिश के साथ रह रहकर हुक्मरानी कैसे की जाती है वो भी सीख चुकी थी। रजिया भले ही एक औरत थी, मगर वो उस समय के बड़े बड़े मर्द हुक्मरानों के बराबर थी और उसकी इसी खूबी ने उसे दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बना दिया। मगर अपने काले गुलाम से मोहब्बत की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 1231-32 में इल्तुतमिश ग्वालियर की बगावत खत्म करने निकल जाता है और अपने पीछे रजिया को सल्तनत संभाल जाता है। 1 साल तक रजिया सल्तनत को इतनी कुशलता और महारत से संभालती है कि लोग रजिया को अगली सुल्तान समझने लगते हैं और इल्तुतमिश भी रजिया की काबिलियत को देखकर उसे अपनी जानशी बनाने पर राजी हो जाता है। मगर दिल्ली सल्तनत के 39 तुर्क सरदारों की मंडली ने, जिसे इल्तुतमिश ने खास अपने लिए बनाया था, इल्तुतमिश के इस फैसले का विरोध किया और इल्तुतमिश से कहते हैं कि अभी तो आपके कई बेटे जिंदा हैं, आप उन्हीं में से किसी को सुल्तान बनाइए। रजिया अभी सुल्तान बनने के लायक नहीं है। इल्तुतमिश कहता है, मेरी बेटी रजिया मेरे सारे बेटों से ज्यादा सुल्तान बनने की काबिलियत रखती है। यहीं से इन तुर्क सरदारों और रजिया के बीच 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है। जब 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मौत होती है तब तुर्क सरदार रजिया की जगह इल्तुतमिश के एक बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना देते हैं। फिरोज शाह नालायक और अय्याश सुल्तान था। वो हुक्मरानी करने के लायक नहीं था, इसीलिए उसकी माँ शाह तुर्कान फिरोज शाह के पीछे से हुक्मरानी करती थी। इन दोनों माँ बेटे की हुक्मरानी ने
जनता पर अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और दोनों ने उन सभी सरदारों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने रजिया को सुल्तान बनाना चाहा था। यही वो वक्त था जब रजिया ने दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनने की कसम खाई और अकेले ही सुल्तान और तुर्क सरदारों से भिड़ गई। एक औरत होने के बावजूद रजिया को किसी भी तरह से कम नहीं आंका जा सकता। रजिया में वो सभी गुण थे जो एक मर्द सुल्तान में होते हैं, मगर कुछ बुरे और गलत काम भी रजिया के हाथों से हुए थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुल्तान बनने के कुछ ही महीनों बाद सुल्तान फिरोज शाह कुहराम की एक बगावत खत्म करने निकल गया और पीछे उसकी मां शाह तुर्कान दिल्ली में रजिया को मारने की साजिश रचने लगी। रजिया इसी मौके की तलाश में थी और फिर रजिया ने अपना काम शुरू किया। जुमे की नमाज के वक्त रजिया अचानक मैदान में आकर सुल्तान फिरोज शाह और उसकी मां शाह तुर्कान की काली करतूतों की पोल खोलने लगी और अपने सुल्तान होने का दावा करने लगी। ये हालत देखकर सब हैरान हो गए। शाह तुर्कान को कुछ समझ आता उससे पहले ही रजिया का काम बन चुका था। जनता अब सुल्तान फिरोज शाह और उसकी मां के खिलाफ आवाज उठाने लगे। जनता ने शाह तुर्कान को मारने के लिए उसके महल पर हमला कर दिया। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रजिया में लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कितनी जबरदस्त काबिलियत थी। रजिया ने सेना और कुछ सरदारों की मदद से गद्दी हासिल कर ली और इस तरह रजिया भारत के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला सुल्तान बनी। वो तुर्क सरदार जो रजिया के खिलाफ थे उनमें से कई रजिया के साथ मिल गए और कुछ को रजिया ने मरवा दिया। फिरोज शाह जब वापस दिल्ली लौटा तो उसे अच्छा खासा सरप्राइज मिला। रजिया ने फिरोज शाह को पकड़कर जिंदान में डाल दिया और कुछ वक्त बाद दोनों माँ बेटे को मौत की नींद सुला दिया। दोस्तों, आपको इस बात पर जरूर गौर फरमाना चाहिए कि सुल्तान बनने से पहले रजिया एक ठीक ठाक दीनी औरत थी, पर्दा भी करती थी। सुल्तान बनने के बाद भी रजिया जब दरबार में जाती तो भी पर्दा करती। उसके और उसके मर्द दरबारियों के बीच भी एक पर्दा होता जिसके परे से ही वो बातचीत किया करती थी। रजिया के साथ सिर्फ औरतें ही रहती थी, मगर ये माहौल रजिया को रास नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे औरत होने की वजह से सल्तनत पर मेरी दबंगई, मेरा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बस फिर क्या था, रजिया ने इस्लाम की तालीमात को दरकिनार कर बेपर्दगी अपना ली। वो अपने आप को मर्दों जैसा दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने मर्द सुल्तान जैसे कपड़े, लबादा और टोपी पहनना शुरू कर दिया। खुले मुंह वो अब दरबार में मर्दों के सामने जाने लगी। रजिया की इन करतूतों की वजह से आम जनता और सल्तनत के सरदारों में उसके खिलाफ विरोध पनपने लगा था। इसके अलावा रजिया एक सुल्तान होते हुए अपने एक काले गुलाम जलालुद्दीन याकूत से मोहब्बत कर बैठी थी। वो मोहब्बत थी या नाजायज संबंध, पता नहीं। याकूत एक हबसी काला गुलाम था जिसे रजिया ने अपना पर्सनल गुलाम बना लिया। मोहब्बत का खुमार इस कदर चढ़ा कि रजिया ने गुलाम याकूत को अमीर आखुर यानी घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी बना दिया। एक हबसी काले गुलाम का यूं इतने बड़े ओहदे पर फाइज होना तुर्क सरदारों को रास नहीं आ रहा था, जबकि रजिया याकूत पर और ज्यादा मेहरबान होने लगी। रजिया ने याकूत को और बड़ा ओहदा देकर अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया और अपना पर्सनल बॉडीगार्ड भी रख लिया। जब भी रजिया घोड़े पर बैठती तो याकूत उसे उसकी बगलों से पकड़कर घोड़े पर बैठने में मदद करता। अब रजिया और याकूत हर पल साथ रहने लगे। इतना सब होने के बाद तो रजिया और याकूत के नाजायज संबंधों पर सवाल उठना लाजमी था। तुर्क सरदारों ने इसी मौके का फायदा उठाकर रजिया को बदनाम करके सल्तनत की गद्दी से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा रजिया ने अपने और तुर्क सरदारों के बीच दुश्मनी की एक और खाई खोदकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। दरअसल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के हर छोटे बड़े ओहदे पर तुर्क जाति के ही लोग फाइज थे, मगर रजिया ने तुर्क सरदारों को हटाकर अलग अलग जाति के लोगों को सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे देना शुरू कर दिया। खासकर अपने गुलाम याकूत को अमीरुल उमरा यानी अमीरों का अमीर बना दिया था। तुर्क सरदारों की सत्ता से यूं बेदखली रजिया के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। तुर्क सरदारान एक हो गए और रजिया सुल्तान का तख्ता पलट करने की साजिशें रचने लगे। इन सरदारों में मोहम्मद जुनैदी नामी सरदार ने भी रजिया का विरोध किया था। जुनैदी इल्तुतमिश का वजीर रह चुका था। जुनैदी ने अपने साथ कुछ सरदारों को भी मिला लिया, जिनमें बदायूं का सूबेदार मोहम्मद सालारी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खान अयाज, हांसी का सूबेदार सैफुद्दीन कुची,
और लाहौर का सूबेदार अलाउद्दीन जानी थी। इन सब ने मिलकर रजिया को मारने की प्लानिंग बनाई। इन लोगों ने अलग अलग वक्त पर रजिया सुल्तान पर हमला किया, मगर रजिया सुल्तान के सामने टिक नहीं पाई। मोहम्मद सलारी और कबीर खान अयाज ने जंग शुरू होते ही रजिया सुल्तान के सामने घुटने टेक दिए और रजिया के ही साथ जाकर मिल गए। अब ये दोनों रजिया के साथ मिलकर बाकी सरदारों को मारने की प्लानिंग बनाने लगे। सैफुद्दीन कूची और अलाउद्दीन जानी को पकड़कर रजिया ने कत्ल करवा दिया, जबकि मोहम्मद जुनैदी जान बचाकर सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था और वहीं उसकी मौत हुई। इन सरदारों की मौत के बाद तुर्क सरदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने के लिए एक आखिरी और खतरनाक साजिश रचते हैं। तुर्क सरदार भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया को बगावत करने पर आमादा कर लेते हैं। अल्तुनिया 1240 ईस्वी में रजिया के खिलाफ बगावत छेड़कर जंग का ऐलान कर देता है। रजिया सुल्तान को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती है कि ये एक साजिश है और वो इस साजिश का शिकार होने वाली है। रजिया सुल्तान अल्तुनिया से जंग करने निकल पड़ती है। इस जंग में उसका प्रेमी गुलाम याकूत भी उसके साथ होता है। जंग में याकूत मारा जाता है। रजिया याकूत की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने होशो हवास खो बैठती है। रजिया जंग करने की हालत में नहीं रहती और इसी का फायदा उठाकर अल्तुनिया रजिया को पकड़कर अपने महल ले आता है और जिंदान में डाल देता है। जब ये खबर दिल्ली पहुंचती है कि रजिया को अल्तुनिया ने गिरफ्तार कर लिया है, तो दिल्ली सल्तनत के तुर्क सरदार इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह को सुल्तान बना देते हैं। तुर्क सरदारों की साजिश कामयाब होती है। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने अल्तुनिया से कहा था कि अगर तुम रजिया को गद्दी से हटाने में हमारी मदद करो तो हम तुम्हें भी दिल्ली सल्तनत में से हिस्सा देंगे, मगर बाद में तुर्क सरदारों ने ऐसा नहीं किया और आपस में ही दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े ओहदे बांट लिए। राजनीति में ऐसा ही होता है। इधर से जब ये खबर रजिया सुल्तान तक पहुंची कि तुर्क सरदारों ने बहराम शाह को सुल्तान बना लिया है, तो रजिया और अल्तुनिया एक हो गए। रजिया ने अपनी खूबसूरती से अल्तुनिया को माइल किया या फिर दोनों ने सत्ता के लालच में एक दूसरे से शादी की, क्या हुआ पुख्ता अंदाजा नहीं है, मगर दोनों दुश्मनों ने शादी कर ली और सुल्तान बहराम शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अल्तुनिया और रजिया की सेना में खोखर, जाट और राजपूत शामिल थे। सितंबर अक्टूबर 1240 में जंग होती है और बहराम शाह अल्तुनिया और रजिया को हरा देता है। दोनों जान बचाकर जंग से भाग जाते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि बीच जंगल में हिंदू डाकुओं के एक गिरोह द्वारा दोनों की हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा रजिया सुल्तान की मौत पर एक और कहानी मशहूर है। वो ये कि जंग से भागकर रजिया सुल्तान जंगल में थक हार कर एक पेड़ के सहारे सो जाती है। एक गडरिया जब वहाँ से गुजरता है तो रजिया सुल्तान को देखकर उसके पास आ जाता है। चूँकि रजिया मर्दों का लिबास पहना करती थी, इसीलिए पहले तो उस गडरिये को लगा कि ये कोई मर्द है, मगर अचानक रजिया के कीमती जेवरात उस गडरिये को नजर आ जाते हैं और इन जेवरातों के लालच में वो गडरिया रजिया सुल्तान की हत्या करके वहीं दफना देता है। मगर जब वो गडरिया उन जेवरातों को बेचने बाजार जाता है तो जोहरी को उन जेवरातों में से एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी मिलती है। वो जोहरी समझ जाता है कि ये चोरी का सामान है और फिर वो सिपाहियों को खबर कर देता है। सिपाही उस गडरिये को पकड़कर उसी जगह ले आते हैं जहां उसने रजिया सुल्तान को दफनाया था और इस तरह रजिया सुल्तान एक गुमनामी की मौत मरते मरते बचती है। रजिया सुल्तान की कब्र आज भी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास मोहल्ला बुलबुली खाने की तंग गलियों में जर्जर हालत में मौजूद है। दोस्तों, रजिया सुल्तान ने अच्छे और बुरे दोनों काम किए। सत्ता के लिए उसने जो गलत कदम उठाए उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता, मगर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि रजिया बहादुर और अक्लमंद सुल्तान बनकर उभरी थी। रजिया को इल्म से मोहब्बत थी। उसने कई स्कूल, मदरसे, मस्जिद, हॉस्पिटल वगैरह बनवाए और दिल्ली को खूबसूरत बनाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। रजिया के बाद बहराम शाह 2 साल तक सुल्तान बना रहा और 1242 ईस्वी में उसी की सेना ने उसकी हत्या कर दी। तुर्क सरदारों ने फिर अलाउद्दीन मसूद को सुल्तान बना दिया। ये अलाउद्दीन मसूद उसी फिरोज शाह का बेटा था जिसे रजिया ने मारकर सत्ता हासिल की थी। 1242 से 1246 तक ये नाकारा सुल्तान अलाउद्दीन मसूद दिल्ली सल्तनत पर चिपका रहता है, मगर असल हुकूमत उन तुर्क सरदारों की ही चल रही होती है। इसके बाद 1246 में आया
इल्तुतमिश का पोता नसीरुद्दीन महमूद, जिसने 20 सालों तक भारत पर हुकूमत की। सत्ता का नशा कितना नशीला होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बलबन इल्तुतमिश के पोते नासिरुद्दीन महमूद और उसकी मां के साथ मिलकर सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह को कत्ल कर देते हैं और तख्त पर सिर्फ 17 साल के नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाकर बैठा दिया जाता है। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान तो बन जाता है, मगर उसका मन ही नहीं होता है हुकूमत करने का, बल्कि उसकी जगह कोई और शख्स ही सल्तनत को अपने इशारों से चला रहा होता है। दोस्तों, नासिरुद्दीन महमूद एक मजबूत दीनी माहौल में पले बड़े होते हैं। दुनिया से ज्यादा वो दीन से लगाव रखते थे। एक सुल्तान होते हुए वो अपनी इबादतों में इस कदर मशगूल रहते कि उनके पास हुक्मरानी करने तक का वक्त नहीं होता था। रातों को उठकर नमाजें पढ़ना, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करना उनकी दिनचर्या थी। एक सुल्तान अगर चाहे तो दुनिया की कीमती से कीमती चीज उसके सामने लाकर रखी जा सकती है, मगर आप हैरान होंगे कि नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती थी जो सुल्तान होकर भी कुरान की नकलें बनाकर और टोपियां सीकर अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। यहाँ तक कि उनकी सिर्फ एक ही बीवी थी और वही बीवी घर का सारा काम करती और खाना बनाती थी। उनके यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं था। सोचिए, एक सुल्तान होकर ऐसी जिंदगी जी रहे थे नासिरुद्दीन महमूद। दोस्तों, इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक सल्तनत में तुर्क सरदारों की मंडली का बोलबाला था। जो भी उनके खिलाफ होता, ये मंडली उसे रातों रात रास्ते से हटा देती थी, चाहे वो सुल्तान ही क्यों न हो। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद बहुत नर्म मिजाज के थे। वो नहीं चाहते थे कि सल्तनत में हुकूमत के लिए कोई फसाद हो, इसीलिए उन्होंने सल्तनत की बागडोर इन तुर्क सरदारों को सौंप रखी थी और खुद अल्लाह की इबादत में लगे रहे। इन्हीं तुर्क सरदारों में गयासुद्दीन बलबन नामी एक और तुर्क सरदार था, जो इतना तेज और अक्लमंद था कि कुछ ही समय में वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के इतने करीब आ गया कि नासिरुद्दीन महमूद ने उसे अपना नायब मुकर्रर कर लिया। दोस्तों, उस वक्त जो शख्स नायब के पद पर होता था, वो सुल्तान के बाद सल्तनत का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से बलबन की ये नजदीकी तब और बढ़ जाती है जब बलबन अपनी बेटी का निकाह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से करवा देता है। बस यहीं से असली पिक्चर शुरू होती है। सुल्तान से बलबन की ये नजदीकियां तुर्क सरदारों को खटकने लगती हैं। सोए हुए तुर्क सरदार वापस जाग उठते हैं। उनको ये अंदाजा हो चुका था कि जरूर बलबन कोई बड़ा काम सरंजाम देने वाला है। बस फिर क्या था, तुर्क सरदारों ने बलबन के खिलाफ एक ऐसी साजिश रची कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद खुद बलबन को सल्तनत से बाहर निकाल फेंकते हैं। आखिर क्या थी वो साजिश, जरूर जानेंगे, मगर उससे पहले हमें बलबन का बैकग्राउंड देख लेना चाहिए। दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन का जन्म 1210 से 1216 ईस्वी के बीच एक तुर्क कबीले में होता है, जहां बलबन के पिता उस कबीले के सरदार होते हैं। इस कबीले पर मंगोल हमला कर देते हैं और मंगोल बलबन को पकड़कर गुलामों के बाजार में ले जाकर बेच देते हैं, जहां ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामी शख्स बलबन को खरीद कर दिल्ली ले आते हैं। बलबन की बुद्धि इतनी तेज थी कि देखने वाला हर कोई बलबन को खरीदना चाह रहा था, मगर उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को खरीद लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश बलबन की होशियारी देखकर उसे अपना निजी नौकर बना लेता है। धीरे धीरे बलबन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान को इस कदर प्रभावित करता है कि सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को अपने 40 खास तुर्क सरदारों के गिरोह में शामिल कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए कि बलबन कैसे एक गुलाम से एक सल्तनत के सुल्तान के करीब पहुंच जाता है। गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्तान के दौर में अमीर शिकार के ओहदे पर पहुंचता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के दौरे हुकूमत में अमीर हाजिब यानी सुल्तान का मैनेजर या सेक्रेटरी बनता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद के जमाने में नायब के पद पर आ पहुंचता है। माने के बलबन सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। ये सब वो अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करता है, जबकि बाकी के तुर्क सरदार बस तुर्क सरदार ही बने रह जाते हैं। बलबन का यूं बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ना ही बलबन और तुर्क सरदारों में नफरत की आग भड़का रहा था। अब उस खतरनाक साजिश की बात करते हैं जिसकी वजह से नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को सल्तनत से बाहर कर दिया था। असल में जब तुर्क सरदारों को लगने लगा कि बलबन हमसे आगे बढ़ रहा है और अगर ये कहीं सुल्तान बन गया तो हमारे खैर नहीं,
इसीलिए तुर्क सरदारों ने बलबन का पत्ता साफ करने की साजिश रची। तुर्क सरदारों में एक सरदार इमामुद्दीन रेहान जो हिंदू से मुसलमान बना था, सभी तुर्क सरदारों को अपने साथ लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़का देता है। वो सुल्तान से कहता है कि बलबन आपसे सल्तनत छीनने की साजिश रच रहा है और कभी भी आपकी हत्या कर सकता है। बस सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उन सरदारों की बातों में आ जाते हैं और बलबन को सल्तनत के हर पद से हटाकर रेहान को नायब का पद दे देता है। तुर्क सरदार खुश हो उठते हैं, मगर बलबन भी कहाँ हार मानने वाला था। बलबन धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करता है और कुछ तुर्क सरदारों को अपने साथ मिला लेता है। कुछ ही वक्त बाद बलबन अपनी बेगुनाही साबित करके सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कहता है कि या तो मुझे वापस नायब का ओहदा दो और रेहान को हटाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से कोई फसाद ना हो इसलिए रेहान को हटाकर वापस बलबन को अपना नायब मुकर्रर कर लेता है। अब बलबन इतना ताकतवर हो जाता है कि सल्तनत की बागडोर उसके हाथों में आ जाती है और तुर्क सरदार देखते रह जाते हैं। सन 1265-66 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। चूंकि नासिरुद्दीन महमूद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी सल्तनत अब बलबन के हिस्से में आ गिरी। बलबन अब सुल्तान था। तुर्क सरदारों में हाहाकार मच गया कि भागे तो भागे कहाँ। इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन इतना कठोर नेचर का सुल्तान था कि वो अपने दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी दरबारी को हंसने देता था। हमेशा सीरियस रहता और शराब को तो इस कदर बैन किया कि कोई अगर शराब पी लेता तो कोड़े मार मार कर उसके खाल उधेड़ दी जाती थी। बलबन वैसे तो दीनदार सुल्तान था और वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। ये शब्द आपने कई फिल्मों या ड्रामों में सुना होगा। इसका मतलब होता है खुदा की परछाई। यानी बलबन कहता था कि अल्लाह ने मुझे खास तौर पर सुल्तान बनाकर भेजा है और मैं पैगंबरों के बाद दुनिया की सबसे महान हस्ती हूँ। इसके अलावा बलबन ने अपनी सल्तनत में कुछ गैर इस्लामी रीति रिवाज भी चला रखे थे। जैसे बलबन अपने दरबारियों से अपने आगे सिजदा करवाता था, यानी दरबारी सुल्तान बलबन के सम्मान में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान बलबन के आगे सर झुकाते थे। इसके अलावा बलबन ने पायपोस नामी रिवाज भी चलाया हुआ था, जिसमें हर दरबारी सरदार सुल्तान बलबन के पैर के अंगूठे या कपड़े को झुककर चूमते थे, जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा। ये सब गैर इस्लामी रीति रिवाज थे। इसके साथ बलबन ने फारस के नवरोज का त्योहार यानी न्यू ईयर का त्योहार भी अपनी सल्तनत में राइज किया हुआ था। दोस्तों, बलबन सुल्तान तो बन गया, मगर अब उसके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक मंगोल, दूसरा तुर्क सरदार और तीसरे वो मेवाती राजपूत जो मुसलमानों को लूटते और मुस्लिम औरतों की इज्जत पर हाथ डालते थे। दोस्तों, बलबन ने पहले भी मंगोलों के हलाकू खान को धूल चटाई थी और सुल्तान बनने के बाद भी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बलबन की सल्तनत पर हाथ डाल सके। बलबन के सुल्तान बनने के बाद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क सरदार ही थे, क्योंकि अगर बलबन उन्हीं तुर्क सरदारों की मंडली से निकलकर सुल्तान बन सकता है तो बाकी के तुर्क सरदार क्यों पीछे रहेंगे। वो भी मौका पाकर बलबन को खत्म कर सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखेंगे, मगर बलबन ने इन तुर्क सरदारों को सर ही नहीं उठाने दिया। बलबन की सल्तनत में मेवाती राजपूत लुटेरों का आतंक सबसे खतरनाक समस्या थी। इनका आतंक इतना विकराल रूप ले चुका था कि ये दिन में भी मुस्लिम काफिलों को लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि जब मुसलमान मर्द जुमे की नमाज पढ़ने में व्यस्त होते तो ये मेवाती राजपूत लुटेरे शहर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं को उठा ले जाते और जंगल में उनका बलात्कार करके बिना कपड़ों के ही छोड़ देते थे। इस समस्या का समाधान सुल्तान बलबन ने खूब महारत से किया। बलबन ने उन सभी ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां ये मेवाती राजपूत लुटेरे रहते थे। एक एक को पकड़कर गर्दनें उड़ा दी गई, खाल खींच ली गई और कुछ ही वक्त में बलबन ने इन मेवातियों का आतंक खत्म कर दिया। दोस्तों, इतिहास में बलबन जैसे सुल्तानों की कम ही मिसालें मिलती हैं। बलबन ने अपने बूढ़े और शहीद सैनिकों को नकदी पेंशन देने की शुरुआत की थी। बलबन की सल्तनत का मजबूत होना उसके जासूसी विभाग पर भी निर्भर करता था। बलबन ने अपनी सल्तनत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा रखा था कि सल्तनत की हर छोटी बड़ी खबर या साजिश
सीधे बलबन तक पहुंच जाया करती थी। बलबन खुद एक गुलाम हुआ करता था, लिहाजा उसने अपनी सल्तनत में ऐसा डर कायम कर दिया था कि कोई शख्स अपने गुलाम पर जरा भी जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इंसाफ का हर जगह बोलबाला था। सन 1285 ईस्वी में मंगोलों से जंग करते हुए बलबन का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद शहीद हो जाता है। अपने बेटे की मौत के दुख ने बलबन को अंदर से खत्म कर दिया था। बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खां सल्तनत संभालना ही नहीं चाहता था, वो बंगाल की सूबेदारी में ही खुश था। अतः 1286 ईस्वी में बलबन अपने पोते के खुसरो को सुल्तान बना देता है और 1286 में ही 20 साल की हुकूमत के बाद बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की मौत के बाद वो तुर्क सरदार फिर उठ खड़े होते हैं और कैखुसरो को गद्दी से हटाकर बलबन के दूसरे पोते कैकुबाद को गद्दी पर बैठा देते हैं। कैकुबाद शराबी और लड़कियों का आदी होता है। कुछ ही वक्त बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है और फिर तुर्क सरदार कैकुबाद को गद्दी से हटाकर उसके सिर्फ 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं। बस ये क्यूमर्स गुलाम सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित होता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 3 साल के सुल्तान क्यूमर्स को कत्ल करके गुलाम सल्तनत का अंत कर देता है और भारत में खिलजी सल्तनत की नींव रखता है।